Good morning, children. Children, we were doing chapter 7, a role model, Dr. APJ Abdul Kalam. I hope you all have read page number 89 and first paragraph of page number 90. Today we will continue. Okay, let's start with the second paragraph of page number 90. He studied at Rameshwaram Elementary School. Once Abdul Kalam completed school, he went to St. Joseph's College, Tiruchirappalli, affiliated to the University of Madras. He graduated in physics in 1954 and moved to Madras, that's now Chennai, in 1955 to study aerospace engineering. Once the dean was not happy with his work and wanted him to complete his project in 2 days' time. Abdul Kalam worked very hard and completed his project on time to the dean's surprise. After graduating from the Madras Institute of Technology in 1960, Kalam worked as an aerospace engineer with the Defense Research and Development Organization, that is DRDO, and later with the Indian Space Research Organization, that is ISRO. He was the project director of India's first indigenous satellite launch vehicle, that is SLV-3, which deployed a satellite called Rohini in July 1980. He is called the Missile Man of India. He also played an important role in India's Pokhran 2 nuclear test in 1998. Abdul Kalam was elected the President of India in 2002. He was a visiting professor at the Indian Institute of Management, Ahmedabad, and the Indian Institute of Management, Indore. He was also the Chancellor of the Indian Institute of Space Science and Technology, Trivandrum. Abdul Kalam was also involved in various other educational institutes. He wrote many books, many famous books like India 2020, A Vision for the New Millennium, Ignited Minds, Wings of Fire, and Mission India 2020. Abdul Kalam loved the youth and children. He felt happy to meet them. He believed that they are the future of our country. The teachers said, "Good reading, Deepak. I am so proud of you. Let us all clap for him." The children clapped loudly, but Deepak was lost in his thoughts. On his way back from school, he was quiet. At night, he told his mother, "Mama, I want to become a scientist like Dr. APJ Abdul Kalam." She smiled and hugged him. "What does that mean? But I am sure you will do well." Deepak felt happy. So children, now you can pause the video and read page number 90 and 91. Okay? After reading, you can play the video. Okay, I hope you all have read page number 90 and 91. Now, children, there are few words given on page number 90. Confidently, I have already explained you while doing the explanation of paragraph 1. Confidently means in a manner showing certainty about something. किसी चीज़ के लिए ऐसा शो करना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. तो आप जब किसी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट होते हो तो बहुत बिना हेजिटेट किए आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो, येस आई कैन डू इट. दैट इज़ कॉन्फिडेंटली विदाउट हेजिटेटिंग. Popularity means by many or most people or generally means जो popular है, जो ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या मान रहे हैं.
एवरेज इज शोइंग मॉडरेट परफॉर्मेंस. एवरेज परफॉर्मेंस मतलब ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, मॉडरेट परफॉर्मेंस. ग्रेजुएटेड मीन्स एक एकेडमिक डिग्री होती है जो 12th के बाद 3 years की करते हैं, दैट इज ग्रेजुएशन. सो अदरवाइज ग्रेजुएटेड मीन्स एन एकेडमिक डिग्री या कोर्स ऑफ ट्रेनिंग जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए. that is graduated. Here graduated doesn't means they're talking about graduation. They are not talking about graduation. Graduation एक डिग्री है जो आप 12th के बाद करते हो, ठीक है, 3 years की. बट यहाँ पे ग्रेजुएटेड मतलब ये हुआ कोई भी कोर्स, कोई भी एकेडमिक डिग्री जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है या कोई भी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो हम बोलते हैं वी हैव ग्रेजुएटेड इन इट. Okay. Aerospace engineering, an engineering course to study about aircraft and space vehicles. Aircraft और space vehicles के बारे में पढ़ने के लिए जो इंजीनियरिंग होती है उसको एरोस्पेस इंजीनियरिंग बोलते हैं. Indigenous, originating in a particular place. Indigenous means एक किसी पर्टिकुलर जगह से जहाँ से शुरू हो रहा है. Deployed is utilized or arranged for a specific purpose. एक किसी specific purpose के लिए किसी चीज़ को arrange किया गया, utilize किया गया है, उसी के लिए ही यूज़ होगा वो, that is deployed. Satellite is an artificial body which is placed in orbit. Satellite एक artificial body होती है जो orbit में place की होती है अर्थ के या किसी और planet के around किसी purpose के लिए. किसी भी प्लैनेट के अराउंड जो ऑर्बिट होता है वहाँ पे जो आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस करी जाती है किसी एक पर्पस के लिए, वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वहाँ की पिक्चर्स गैदर करने के लिए, दैट इज़ दी सैटेलाइट. प्रोफेसर इज द टीचर ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी. प्रोफेसर एक टीचर होता है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है. ओके, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो टीचर होते हैं उनको हम प्रोफेसर बोलते हैं. राइट, आई होप दीज वर्ड मीनिंग्स आर क्लियर. Now children, let's start the explanation from the second paragraph of page 90. He studied at Rameshwaram Elementary School. So he यहाँ पे कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में. So डॉक्टर कलाम कहाँ पे पढ़ाई की थी उन्होंने? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ाई की उन्होंने, और एक बार अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी तो वो सेंट जोसेफ्स कॉलेज में गए तिरुचिरी चिरापल्ली में, जो कि एफिलिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से. और उन्होंने फिज़िक्स में ग्रेजुएशन किया 1954 में. ये ग्रेजुएटेड इन फिज़िक्स इन 1954 और उसके बाद मद्रास मूव किया उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए. यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की उन्होंने मद्रास में, जो कि अब चेन्नई जिसको बोलते हैं, 1955 में. वंस द डीन वॉज नॉट हैप्पी. एक बार उनके जो डीन थे कॉलेज के वो उनसे खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि वो अपना प्रोजेक्ट 2 दिन में ख़त्म करें. ठीक है, और डीन सरप्राइज हो गए क्योंकि अब्दुल कलाम ने वो प्रोजेक्ट 2 दिन में ख़त्म कर दिया था. बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा उसके लिए उनको, पर उन्होंने कर लिया था. आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1960 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई पूरी करी, वो डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट करी. उसके बाद कलाम was working, he worked as an aerospace engineer in with the Defense Research and Development Organization. जो डिफेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम DRDO बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने एज एन एरोस्पेस इंजीनियर वर्क किया. फिर उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उन्होंने काम किया. वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे. इंडिया का जो पहला इंडिजिनियस सैटेलाइट था, लॉन्च था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV-3, विच डिप्लॉयड अ सैटेलाइट, जिसने एक सैटेलाइट डिप्लॉय किया जिसका नाम, उस सैटेलाइट का क्या नाम था, रोहिणी, इन जुलाई 1980. उस सैटेलाइट का एक पर्पस था, उस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था. तो सैटेलाइट डिप्लॉय किया था किस प्रोजेक्ट में? इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 ने एक सैटेलाइट डिप्लॉय किया था रोहिणी नाम का जुलाई 1980 में. एंड हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट?
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। He also played an important role in India's Pokhran 2 nuclear test in 1998. 1998 में पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्ले किया था. ओके, he was very important. He was playing an important, eminent role in that nuclear test. Now turn to page number 91. Abdul Kalam was elected the President of India in 2002. In 2002, Abdul Kalam was elected as the President of India. He was a visiting professor. वो visiting professor थे Indian Institute of Management IIM में, IIM अहमदाबाद and IIM इंदौर. अहमदाबाद और इंदौर दोनों में विजिटिंग प्रोफेसर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. वो चांसलर भी थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवनाथपुरम के. अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी उनका इन्वॉल्वमेंट था. उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी लाइक इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर एंड मिशन इंडिया 2020. अब्दुल कलाम लव द यूथ एंड चिल्ड्रन. वो यूथ को और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत खुश होते थे बच्चों से मिलके, बच्चों को मोटिवेट करते थे लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए. ही बिलीव दैट दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. वो ऐसा मानते थे कि जो बच्चे हैं ये हमारी कंट्री के फ्यूचर हैं. ओके, सो दिस वॉज द लेसन. देन द टीचर सेड गुड रीडिंग दीपक. टीचर ने बोला दीपक आपने अच्छे से रीड किया, वेरी गुड, मैं बहुत प्राउड हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. लेट अस ऑल क्लैप फॉर हिम. हम सब दीपक के लिए क्लैप करें. द चिल्ड्रन क्लैप्ड लाउडली. सारे बच्चों ने बहुत तेज़ी से क्लैपिंग करी, बट दीपक अपने ही थॉट्स में खोया हुआ था. घर आते हुए भी वो चुप था और अपनी रात में उसने अपनी मदर को बोला कि मम्मा मैं साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता हूँ. उसकी मम्मा ने स्माइल किया और उसको हक किया, बिकॉज वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें तो पता नहीं था. उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है मुझे तो नहीं पता, पर मैं श्योर हूँ कि तुम लाइफ में अच्छा करोगे. और दीपक को बहुत अच्छा लगा, उसकी मदर ने दीपक को हक किया. ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू हैव लर्नड लॉट मैनी न्यू थिंग्स अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. Okay children, kindly read the chapter again, and if you have any doubts related to this chapter, you can ask during the class. Thank you children. Have a nice day.